April 2024. Current affairs in short, the 18th of April 2024. National news. Tree cover loss in India. Since 2000, India has lost 2.33 million hectares of tree cover due to natural and human factors, as reported by Global Forest Watch. This has significant implications for the country's carbon balance and climate change efforts. राष्ट्रीय समाचार. भारत में वृक्षावरण का नुकसान. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के बाद से भारत ने प्राकृतिक और मानवीय कारकों के कारण 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्षावरण खो दिया है. इसका देश के कार्बन संतुलन और जलवायु परिवर्तन प्रयासों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. इंटरनेशनल न्यूज. Kuwait's new Prime Minister, Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmad Al Sabah, has been appointed as Kuwait's Prime Minister following the resignation of his predecessor, Sheikh Mohammed Sabah Al Salam Al Sabah. अंतर्राष्ट्रीय समाचार. कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को उनके पूर्ववर्ती शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा के इस्तीफे के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है. अपॉइंटमेंट्स न्यूज. Bharat Pay's new CEO, Nailan Negi, has been appointed as the CEO of Bharat Pay after serving as the interim CEO and CFO during a crucial transition period. Space India's brand ambassador, actress Sanjana Sanghi, has been named the brand ambassador of Space India, enhancing the organization's mission to promote space education among Indian students. नियुक्ति समाचार. भारत पे के नए सीईओ. एक महत्वपूर्ण संक्रमण अवधि के दौरान अंतरिम सीईओ और सीएफओ के रूप में कार्य करने के बाद नलिन नेगी को भारत पे के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है. स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री संजना सांघी को भारतीय छात्रों के बीच अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के संगठन के मिशन को बढ़ाते हुए स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है. बैंकिंग न्यूज. RBI halts Bob World app. Following a surge in cyber fraud incidents, the Reserve Bank of India has stopped customer onboarding for the Bank of Baroda's Bob World app and is implementing stricter cybersecurity measures. Fitch's ratings for Indian banks. Fitch Ratings has affirmed a BBB rating with a stable outlook for State Bank of India and Canara Bank. बैंकिंग समाचार. RBI ने BOB वर्ल्ड ऐप को रोक दिया. साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड ऐप के लिए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग बंद कर दी है और कड़े साइबर सुरक्षा उपायों को लागू कर रहा है. भारतीय बैंकों के लिए फिच की रेटिंग. फिच रेटिंग्स ने भारतीय स्टेट बैंक और कैनरा बैंक के लिए स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB रेटिंग की पुष्टि की है. इकोनॉमी न्यूज. IMF's GDP forecast for India. The International Monetary Fund has increased India's GDP growth forecast for 2024-25 to 6.8% and also raised its global growth projection to 3.2%. CDP Suraksha for horticulture. The Indian government launched a digital platform, CDP Suraksha, to efficiently distribute subsidies to horticulture farmers. अर्थव्यवस्था समाचार. भारत के लिए IMF का GDP पूर्वानुमान. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है और इसके वैश्विक विकास अनुमान को भी बढ़ाकर 3.2% कर दिया है. बागवानी के लिए CDP सुरक्षा. भारत सरकार ने बागवानी किसानों को कुशलतापूर्वक सब्सिडी वितरित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म CDP सुरक्षा लॉन्च किया. बिजनेस न्यूज. Mahindra Susan's renewable energy project. Mahindra Susan is investing 1,200 crore rupees in a hybrid renewable energy project in Maharashtra, expected to generate significant clean energy and reduce carbon emissions. व्यापार समाचार. महिंद्रा सस्टेन की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना. महिंद्रा सस्टेन महाराष्ट्र में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में 1,200 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिससे महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होने और कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है. अवार्ड्स न्यूज. Nykaa's co-founder honored. Advata Nair, co-founder of Nykaa, has been named a 2024 Young Global Leader by the World Economic Forum. Honorary doctorate for Ram Charan. Actor Ram Charan received an honorary doctorate in literature from Wales University, recognizing his influence in cinema. पुरस्कार समाचार. नायका के सह संस्थापक सम्मानित.
नायका के सह संस्थापक अद्वैत नायर को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। रामचरण को मानद डॉक्टरेट की उपाधि। अभिनेता रामचरण को सिनेमा में उनके प्रभाव को पहचानते हुए वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। रैंक्स एंड रिपोर्ट्स न्यूज। Delhi Ziggy Airport Ranking. Delhi Ziggy Airport has been ranked among the top 10 busiest airports globally by the Airports Council International World. रैंक और रिपोर्ट समाचार। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे की रैंकिंग। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है। स्पोर्ट्स न्यूज। India's first hybrid pitch. The HPCA Stadium in Dharamshala is set to receive India's first hybrid pitch, enhancing the quality of cricket matches played there. खेल समाचार। भारत की पहली हाइब्रिड पिच। धर्मशाला में HPCA स्टेडियम को भारत की पहली हाइब्रिड पिच मिलने वाली है, जिससे वहां खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। Important days. World Hemophilia Day 2024. Scheduled for April 17th, the day aims to promote equitable access to care and increase awareness of all bleeding disorders. महत्वपूर्ण दिन। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024, 17 अप्रैल को निर्धारित। इस दिन का उद्देश्य देखभाल के लिए समान पहुंच को बढ़ावा देना और सभी रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। Obituaries News. Carnatic musician K.G. Jayan passed away at 90 in Kerala, known for his significant contributions to Carnatic music and Malayalam cinema. IAF veteran Dileep Singh Majithia. Squadron leader Dileep Singh Majithia, the oldest living IAF pilot, has passed away at age 103, marking the end of a remarkable era in Indian aviation. श्रद्धांजलियां समाचार। कर्नाटक संगीतकार केजी जयन का 90 वर्ष की आयु में केरल में निधन हो गया। वे कर्नाटक संगीत और मलयालम सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे। आईएएफ के अनुभवी दलीप सिंह मजीठिया। सबसे उम्रदराज जीवित आईएएफ पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो भारतीय विमानन में एक उल्लेखनीय युग के अंत का प्रतीक है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।